Hello and welcome back, guys. So today we are going to cover system of linear equations. Now this is another important concept that is tested in the SAT exam. So चलिए start करते हैं. So what all are we going to cover today? What is a system of linear equation? System of linear equation का मतलब क्या है और कितनी equations होती हैं, कैसे उनको solve करते हैं? We are going to do that, right? Now they are going to couple of methods to solve system of equations, multiple equations. That is, one is substitution method, the another one is elimination, and then intersection and number of solutions. तो ये system के बाद system of linear equations को जब हम solve करते हैं तो जो आपका solution आता है वो represent क्या करता है? ग्राफ में अगर उसे हम ड्रॉ करेंगे तो कहाँ नजर आएगा? And then we are going to cover some certain real SAT questions. चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं what all we have covered so far in linear equations. So we started with general form, slope intercept form. X intercept हमने देखा था, y intercept क्या होता है, slope of a line क्या होता है, real SAT question हमने देखे. This was in video 1. In case if you have not watched this, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि कुछ डिपेंडेंसी इस वीडियो में भी रहेगी और अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज है तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज स्लोप? स्लोप को बहुत डिटेल में देखा हमने एंड आई आल्सो आस्क्ड यू टू मार्क स्टार ऑन दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइंस में slopes का क्या रिलेशन होता है एंड perpendicular lines में क्या रिलेशन होता है, and then again we did certain question and this was video 2 and now in this same series this is video 3. topic same है, chapters बदल रहे हैं. Now this is also going to be an important topic, important chapter, इसलिए ध्यान बनाए रखिएगा, concentrate करिएगा. alright, चलिए. So starting with system of linear equations. What does it mean? Linear equation हमने already देख ली है. 1 degree की equation होती है. 1 variable की भी हो सकती है, 2 variables या more than that also. Right? Linear equation means the degree, the power variable के ऊपर the variable raised to the power is 1. Right? अब वो अभी तक जो हमने की थी they were all one equation, single equations को हमने देखा था. Now what if there are multiple equations? How to solve them? That we are going to see. So a system of linear equation consists of two or more linear equation involving the same set of variables. Variables उनमें same रहेंगे. जैसे now this is a system of linear equations. अब ये दो equations हैं, यहाँ पे दोनों में x और y variables हैं, right? Variable same रहेंगे. Degree क्या है? Degree सबकी 1 है, right? ये एक system हो गया. अब इसको solve कैसे करना है? We'll see in the future slides. Another system of linear equation, यहाँ पे अब 3 वेरिएबल आ गए हैं. So we have 3 equations. एक ये जनरल रूल याद रखिए कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी ही डिफरेंट इक्वेशंस आपको चाहिए होती है in order to solve that, in order to find out the solution. तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 इक्वेशंस हैं. अब एक और चीज, I have not seen 3 वेरिएबल्स की बहुत सारे इक्वेशंस मैंने SAT में देखे नहीं हैं. So our major focus would be on 2 variables. So, starting with a single linear equation with 2 variables has an infinite number of solutions. अगर आपको केवल एक इक्वेशन दी जाए, सिंगल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट. क्योंकि देखिए 5 बनाने के लिए x और y की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है. कैसे? लेट्स से 1 हो गया, 4 हो गया, दोनों को ऐड किया 5 हो गया, लेफ्ट एंड राइट इज इक्वल, तो वो एक सॉल्यूशन हो गया, राइट? ये एक सॉल्यूशन है. सिमिलरली ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, इसको 0 पुट कर दो, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, एंड सो ऑन. नेगेटिव में चले जाओ, नेगेटिव में भी जा सकते हैं, राइट? दिस इज 6, दिस इज -1 एंड सो ऑन. तो कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, राइट? तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन होगी तो कितने सॉल्यूशन होंगे आपके? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. लेकिन अगर आपके पास सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस है, मतलब मल्टीपल इक्वेशंस हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन एक सिंगल सॉल्यूशन निकल के आएगा. सिस्टम ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स कैन हैव ए सिंगल सॉल्यूशन. करेक्ट? अब देखिए जैसे ये 2 इक्वेशंस आपको गिवन है, तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की और y की फिक्स वैल्यूज निकल के आएंगी. जैसे अभी वेरिएबल में हम डाल रहे थे, इस केस में
कुछ भी वैल्यूज आ रही थी, नो, यहाँ पे एक x की वैल्यू आएगी, एक y की, और वही सोल्यूशन होगा, एंड दैट्स व्हाई वी से सिंगल सोल्यूशन। गॉट इट? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज द मेथड, कैसे सॉल्व करना है? द वेरी फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है, दैट्स इट। देखिए, अब ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं। अब इसमें एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, दूसरी इक्वेशन में, एंड देन यू सॉल्व इट। ठीक है, कैसे करेंगे? x की वैल्यू ऑलरेडी 2 गिवन है, इस 2 वैल्यू को हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। सो इफ आई पुट 2 हियर, सो इट विल बिकम 2 + y = 5। नाउ व्हेन आई सॉल्व दिस, बोथ साइड अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं, देन आई विल गेट 3। तो y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 2। दिस इज माय सॉल्यूशन, राइट? ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये एक सिंगल सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 2 ही है और y की 3 ही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, 2x + y = 5, x - y = 4। अब इस केस में क्या है, हम, क्योंकि यहां पे तो देखिए एक ही वेरिएबल था, सीधा सीधा पुट कर दिया। यहां पे एक वेरिएबल नहीं है, दोनों में 2 वेरिएबल्स हैं। सो इन दैट केस x को एक साइड रख लेते हैं, या y को एक साइड रख लो, जैसे भी आपको करना है, और रिमेनिंग चीजें दूसरी साइड ले जाओ, और उसको फिर जो भी x आएगा उसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। अब इसमें मुझे नजर आ रहा है, या तो मैं x सॉल्व कर दूं, x को करूंगा तो 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, y मेरे लिए इजी है, तो मैं इस इक्वेशन को, आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज y उधर गया, x - 4। मैंने कुछ नहीं किया, बस रीराइट किया है। 4 इधर आया, y उधर गया, इधर उधर जाना होता नहीं है बेसिकली। मैंने यहां से x सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड, और यहां से y सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद मेरे पास ये आ गया। अब इस y की वैल्यू को आई एम गोइंग टू पुट हियर, ठीक है? 2x + x - 4 = 5। नाउ ये 2x + x, 3x - 4 = 5, 4 उधर गया, हाउ मच इज इट? 3x = 9 एंड x = 3। x की वैल्यू आ गई 3, राइट? अब इस x की वैल्यू 3 को मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें कौन सा इजी है? आई थिंक दिस वन इज इजीयर, तो यहां पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इक्वेशन, दिस वन बिकम्स, यहां लिख देते हैं 3x की वैल्यू 3 - y = 4। सो y उधर गया, 3 इधर आया, तो इसको रीराइट किया, तो आई सॉल्व इट। 3 - 4, दैट इज -1, राइट? सो मेरा इसका सॉल्यूशन क्या आया? x = 3 एंड y = -1। दिस इज माय सॉल्यूशन, दिस इज माय आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था मेथड? सब्स्टिट्यूशन। हम एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ द सेकंड वन इज एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में क्या करेंगे हम? ये जो, जैसे अगेन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एग्जांपल से ही देख लेते हैं। इसमें हम दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करवाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैसे? नाउ लुक एट दिस सिस्टम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, राइट, तो क्या होगा? तो ये देखिए, एक का साइन +y है, एक का -y है। अब जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो स्ट्रेट अवे मैं इनको कैंसिल आउट कर सकता हूं। अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस, दोनों को एक साथ लिख दो, 2x + y लेफ्ट साइड प्लस ये वाला x एंड -y, एंड राइट साइड में 5 + 4। यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, राइट? अब ये देखिए, एक x है, ये 2x है, ये हो गया 3x, और +y और -y ये कैंसिल आउट हो गया, राइट? 3x = 5 + 4 9, और ये मेरा बन गया x = 3। अब इस 3 की वैल्यू x को मैं इसमें डाल दूं या इसमें डाल दूं, कैसे भी कर सकते हैं, राइट? सो ये हो गया मेरा एलिमिनेशन। अब इसी चीज को हम ऐसे ऐड ना करके सीधा हम कैसे कर देते हैं? वी कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो। यहीं पे एडिशन का साइन, जैसे आप बचपन में करते थे प्राइमरी क्लासेस में, 2x + x 3x, y - y 0 = 5 + 4 9। सो x = 9/3, अगेन सीधा 3 आ गया, राइट? नाउ पुट दिस x वैल्यू, x की जो वैल्यू आई है यहां पे पुट कर दो या यहां पे कर दो, एंड सॉल्व फॉर y, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, वही जो पीछे वाली स्लाइड में किया था, सेम, राइट? सो दिस इज एलिमिनेशन। नाउ इसमें अगर एक और चीज देखिए, यहां पे तो स्ट्रेट अवे कैंसिल आउट हो रहा है,
बट अगर आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, कोफिशिएंट जो है वो सीधा सीधा मैच नहीं हो रहे हैं, देन व्हाट वी डू, सो इन सच ए केस हम कोफिशिएंट मैच कराने के लिए कुछ ऐसा मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को कि कोफिशिएंट सेम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4x है, यहां 2x है, व्हाट इफ मैं ऊपर वाली इक्वेशन को पूरी की पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, राइट। सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट इज द रिजल्ट, 2 टाइम्स 2x 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 20, राइट। एंड ये मेरा ऑलरेडी 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देते हैं, तो माइनस करते टाइम क्या होंगे, सबके साइन नेगेटिव ऑपोजिट हो जाएंगे, राइट। लेट्स डू दिस। ये माइनस हो गया क्योंकि मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, राइट। तो ऐसे केस में इसको कैसे करें, ओके लाइक दिस, राइट। तो इस केस में अगर ये नेगेटिव किया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8y एंड दिस इज 20 माइनस 6 14, राइट। ये 14 आ गया। अब y मेरा यहां से कितना आ गया, y इज इक्वल टू 14/8 7/4, फ्रैक्शंस में आ रहा है, डजंट मैटर। अब इस y की वैल्यू को आप इनमें किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में, तो वो आपका ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये वेरिएबल x के लिए सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, सिंपल है क्योंकि फ्रैक्शन है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट सिंपली यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ y और x की वैल्यू से निकाल लेनी है। तो एक x की वैल्यू आएगी और y की ये फिक्स वैल्यू हो गई, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू इट। आगे बढ़ते हैं। नाउ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। तो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, जैसे दो इक्वेशंस है हमारे पास, लीनियर इक्वेशंस, तो ये रिप्रेजेंट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है टू स्ट्रेट लाइंस। अब दो स्ट्रेट लाइन होंगी, अगर वो पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। तो उसी की बात करी जा रही है इधर। सो लेट्स सी दैट। So the point is a linear equation can be represented by a line in the xy plane, all right, ये तो बहुत पहले से करते ही आ रहे हैं। The solution to a system of linear equation is the point at which the lines representing the linear equation intersect। अब ये आपकी दो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इससे जो x और y की वैल्यू आ रही है वो है क्या, बेसिकली वो पॉइंट है जिसपे वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब ये एक लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। क्या पैरेलल है, नो। पैरेलल कैसे पता लगेगा, स्लोप से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसको y एक साइड रखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो ये -2 होगा और ये हमारा +1 होगा, तो स्लोप तो इक्वल नहीं है। अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे क्योंकि पैरेलल नहीं है, राइट। तो कहीं जहां पे लेट्स से एक की इक्वेशन ये है, सॉरी ग्राफ ये है, तो ये जो पॉइंट आया है, इनको सॉल्व करने पे जो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू आती है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट, x, y। अज्यूम करते हैं, अब कुछ भी आंसर आ सकता है, लेट्स अज्यूम कि ये आ रहा है 1 और ये आ रही है वैल्यू 2 फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये 1 2 का मतलब क्या हुआ कि 1, 2 इज द पॉइंट वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर मीटिंग ईच अदर। आई होप इट इज क्लियर, राइट। वही चीज इधर लिखी हुई है कि ये दो लाइंस जो हैं इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका सॉल्यूशन। नाउ अब इंटरसेक्शन अलग अलग केसेस पे कैसा होगा, आपको कैसा पता लगेगा, एक दो स्ट्रेट लाइन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो उनका स्लोप देख के या उनका इंटरसेप्ट देख के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं करती है। सो लेट्स सी दैट इफ द टू लाइंस हैव टू डिफरेंट स्लोप्स देन दे विल इंटरसेक्ट वंस। भाई दो लाइन है और उनका स्लोप इक्वल नहीं है तो क्या मतलब है, अगर स्लोप इक्वल होता है तो पैरेलल होती है, पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो पैरेलल नहीं है, वो इंटरसेक्टिंग है। और दो स्ट्रेट लाइंस कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ओनली वन सिंगल पॉइंट। वही चीज मेंशन है, इफ द टू लाइंस हैव टू डिफरेंट स्लोप्स देन दे विल इंटरसेक्ट वंस। Therefore, the system of equation has exactly one solution. जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉइंट होगा जिस पे दोनों मीट कर रही है।
ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आपको है ना कुछ भी आ सकता है, उसमें आपको जस्ट ये कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर स्लोप इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है। सेम स्लोप, ओके, या दिस वन, ठीक है, टू डिफरेंट स्लोप, नो, या दिस वन। So if the two lines have the same slope but different y-intercepts, then they are parallel lines and they will never intersect. Therefore, we say that the system of equation has no solution. अब देखिए, दो इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशंस गिवन है आपको, दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और उनका अगर स्लोप इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो पैरेलल है, राइट? लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि y इंटरसेप्ट उनका सेम है या डिफरेंट है। अगर y इंटरसेप्ट डिफरेंट है तो इसका मतलब वो पैरेलल है। पैरेलल के केस में दो चीजें हो सकती हैं, ऐसे या फिर एक के ऊपर एक, राइट, कोइंसाइड कर जाए, सुपर इंपोज हो जाए एक दूसरे पे, राइट। तो ऐसे केस में हम यहां पे बात कर रहे हैं कि स्लोप तो इक्वल है लेकिन y इंटरसेप्ट सेम नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या वो दोनों लाइंस कभी मिलेंगी? नो, पैरेलल लाइंस कभी नहीं मीट करती हैं। तो ऐसे केस में कुछ सॉल्यूशन आया, मतलब कि कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना? नो, एंड देयरफॉर वी से दैट देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इन एग्जांपल को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लेट्स से, अब देखिए ये है जनरल फॉर्म। हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उससे बहुत सारा आपके पास इनपुट आ जाता है, बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती है चीजें, तो इसलिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले आते हैं। लेट्स से इसको अगर मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है तो y एक साइड, एवरीथिंग दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा मेरा 3x and plus 2 and this one will become y equals to 3x plus 6। नाउ इन दोनों लाइंस में देखिए स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा x का कोफिशिएंट 3, इसका स्लोप 3 है और इसका भी 3 है, मतलब पैरेलल तो है, राइट। y इंटरसेप्ट देखते हैं, इसका y इंटरसेप्ट है 2, मतलब ये y एक्सिस पे 2 पे कट कर रही है और ये 6 पे कट कर रही है, मतलब कि पैरेलल है और एक के ऊपर एक नहीं है, राइट, क्योंकि एक का इंटरसेप्ट 2 है। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव स्लोप है तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये 6 है। दो पैरेलल लाइन आपको बनानी, एक यहां से गुजर रही है और एक ये गुजर रही है, राइट। तो ये कुछ ऐसी नजर आएंगी, तो ये कहीं पे मीट कर रही है? नो, सो देयरफॉर देयर इज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन अगर आपको कभी भी केस फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन में आया नो सॉल्यूशन कब होगा, तो पैरेलल होनी चाहिए और उनका y इंटरसेप्ट डिफरेंट होना चाहिए। Now next is if the two lines have the same slope and same y intercept, स्लोप भी सेम हो गया और y इंटरसेप्ट भी सेम ही है, तो व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब देन दे विल कंप्लीटली ओवरलैप, एक के ऊपर एक आ रही है, राइट, दे आर द सेम लाइन, दैट मींस द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब जैसे मेरी एक लाइन ये है और इसी के ऊपर एक लाइन ये है, तो कितने पॉइंट्स पे दोनों लाइन मीट कर रही है? हर पॉइंट पे, राइट, हर पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाउ मेनी सॉल्यूशंस? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इक्वेशन कैसी नजर आएगी? ये देखिए, दोनों की इक्वेशन बेसिकली सेम है, राइट। सेम इक्वेशन होगी तभी ऐसा हो सकता है। कैसे? सेकंड वाली इक्वेशन इज नथिंग, या फर्स्ट वाली इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड वाली ही आ जाएगी, या सेकंड वाली को 2 से डिवाइड कर दो, इसको लेट्स से 2 से डिवाइड कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड को, ये कितना बन गया? 2x प्लस y इक्वल्स टू 2, और ये दोनों तो सेम ही होंगी, राइट। सो जो आपको अब स्ट्रेट अवे जब आपने पहली बार देखा तो ये एक बार देखने में सेम नहीं थी, हो सकता है आपको सीधा ही आपको ये एक जैसी दिखा दे, लेकिन अगर ऐसी नहीं है तो फॉर्म उसकी बदल दी है, तो ऐसे केस में आपको कुछ ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ये डिवाइड करके, एंड फाइनली यू सी दैट अरे इक्वेशंस तो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? उससे ऊपर इंपोज हो रही है, ओवरलैप हो रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रही है। So this is done. So in this video, what all we did, let's see that. We talked about what is a system of linear equation, right? Linear equation का system, मतलब 2 or more than 2 variables involved है और multiple equations है, that is system of linear equation. Then we talked about substitution method, कि एक variable की जो भी value है उसको दूसरी equation में उसी variable को put करके देखना। Then we did elimination, हमने subtraction, 2 equations लिखी, उनको add या subtract करके eliminate कराया एक variable को, that we did, and then sorry
And then we learned intersection and number of solutions कि intersect और number of solution कब और कितने होंगे, जिसमें exactly one solution होगा, फिर no solution होगा और infinitely many solutions होंगे. And we did some questions also using the same equations. इसमें हमने कोई separate questions नहीं किए हैं, but जो questions मैंने आपको variable जो example थे उन्हीं में कराया था. लेकिन इसके question अगर यहाँ पे रह गया, I think we can do it in the next video. और एक questions का ही पूरा chapter complete होने पे एक questions का ही हम separate video बना लेंगे जिसमें we can discuss maybe 10, 15, 20 questions जितना भी हो सकता है. So with this we have reached the end of the video, and in case if you have any questions please use the comment box. And अगर आपने previous videos नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी जरूर देखिएगा क्योंकि everything is connected. With this, thank you, take care, bye bye.